Hello, ladies and gentlemen. This is the second session of the GDSC Flutter Bootcamp recorded as an alternative because the original session, well, we lost that audio. So, starting off, I would like to go through that if you're still not done with your Flutter installation, maybe due to the Android SDK or due to some problems with ADB, meaning you couldn't get the SDK manager commands to run, or if you had issues with the emulator, you can use Chrome for the time being to debug Flutter, because what you do here, so it says my phone here because I'm going to use my phone. You click here and Chrome should be one of these options here. It's not on my device because this is my device, but यहाँ Chrome अगर आ रहा है आपका, you just click that and it's going to show up a Chrome screen, and we just like resize it to just use it like this. It should look very similar to a phone, okay, and then you just pretend everything is fine. So you can do the future sessions. Getting back to some of the content that we had covered in the second session, we had to cover Dart basics. Acha. Dart, as we had gone through, Dart is the language that we are coding in. You press escape to. Acha, another thing that I wanted to cover was that a lot of the issues, so when I'm running the app, right, let's just go ahead and run this app in the background. These problems at your stage are mostly ignorable, okay, except if there are any red ones here. There are some issues that have a blue line under them. You can largely ignore them. Output is also largely ignorable except where it has to do with pubspec.yaml. It gives output, shows us the output of some things that are maybe secondary to the running of the main Flutter app. यानी कि ये कुछ बाकी दूसरी, ये थोड़ी दूसरे नंबर पे ये चीज़ आती है, आउटपुट वाली चीज़. डिबग कंसोल में मेन आपका लेना देना होता है. सो व्हेन आप जब डेवलप कर रहे हैं, मेन आपके इशूज़ वगैरह आएंगे, कोई मसला वगैरह आ रहा है, तो वो डिबग कंसोल खोल के रखा करें. उसके अलावा टर्मिनल शायद आप लोग को पता होगा, ये मेरा it's going to look something like this for you guys. Actually, that previous thing was, ignore that, but it's going to look something like this. Here you can run commands like echo a b c d. What echo does even on Windows is you just जो भी आप उसके आगे टाइप करेंगे वो उसके आगे छाप देता है. अच्छा, const final and variable. अच्छा, ये स्क्रीन भी आपकी लोड हो गई. वी विल गेट टू दिस इन अ बिट. मेन डार्ट का, अच्छा डार्ट की ना ये भी चीज़ है कि ज़्यादातर अगर आप जावा आपने किया है तो जावा में क्या होता है, आप लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक मेन वॉइड ब्ला 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 ब्ला, तो बेसिकली आपका जो मेन फंक्शन होता है वो रन हो रहा होता है. यहाँ ये इसलिए, चलो अगर मैं इसको बिल्कुल ही सारी चीज़ें फॉर द टाइम बिंग विल ट्रीट दिस एज अ सिंपल प्लेन डार्ट फाइल. सही है. अच्छा, जावा में आप मेन फंक्शन करके भी आप चीज़ें रन कर सकते हैं, लेकिन आप सिंपली ना इंट आई इज इक्वल टू 0 इस तरह से खाली कोड भी उसके बाहर भी रन कर सकते हैं. अच्छा, फाइनल क्या होता है, कॉन्स्ट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है. अच्छा, तो आई वॉन्ट टू मेक यू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल कि अगर आपने कोई फ़र्ज़ करें कि ये ज़मीन है, सही है, उस पर बॉल पड़ी हुई है. अब बॉल जब तक पड़ी रहेगी तो उसको कोई मसला नहीं होगा, बट जब आपको चाहिए कि मैं चाह रहा हूँ कि बॉल मूव करे, तो आप यू विल हैव टू अप्लाई सम एनर्जी, राइट. सो whenever you are going to change the state of an application, because we studied this in the last class, that you have stateful, and this was, we had the home screen as a stateful widget, right, because we were changing the state, we were changing the counter variable which was being reflected on this screen. तो इसको क्योंकि जब हम चेंज करते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, और पूरा मकसद ही स्टेटलेस विजेट अलग रखने का यह है कि स्क्रीन में कुछ चेंज नहीं होगा जहाँ तक हम इस बिल्ड फंक्शन में देख रहे हैं. तो फिर इसको हम स्टेटलेस रखेंगे. इसमें यह होता है कि स्टेटलेस आप चीज़ रखेंगे, या जितनी आप कांस्टेंट चीज़ रखेंगे, जितनी आप अनचेंज्ड चीज़ रखेंगे, उतनी आपकी परफॉर्मेंस लाजमी है बेहतर होगी. अगर आपको कोई चीज़ बदलनी ही नहीं है, इफ द फोन डजेंट हैव टू डू एनी वर्क टू चेंज एनी वेरिएबल, एनी नंबर, एनी लेटर, एनी एनिमेशन ऑन द स्क्रीन, देन देयर इज नो रीज़न that it has to spend any energy to change the screen, right? So what we do is we prefer, हम ये चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कांस्टेंट रहें.
अच्छा, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट आपका होता है कंपाइल टाइम कांस्टेंट। इसमें अगर मैं लिखूँ कॉन्स्ट इंट आई इक्वल्स 1, इसका मतलब ये है, या फिर अगर मैं लिखूँ कॉन्स्ट स्ट्रिंग एस इक्वल्स ए बी सी डी, इसका मतलब ये है कि मैं सुहेब जो ये कोड लिख रहा है, मैंने बता दिया है कि आई जो है 1 के लिए स्टैंड करेगा और किसी चीज़ के लिए स्टैंड नहीं करेगा। ये ज़्यादा जो है आपके थोड़े मैथमेटिकल कांस्टेंट अगर आप करें तो उसमें ये पाए में मसला है। अच्छा, ये डबल होना चाहिए था। डबल और इंट का मैं उम्मीद करता हूँ लोगों को फ़र्क पता होगा। डबल में आपका डेसिमल होता है और इंट में आपका डेसिमल नहीं होता है, और दोनों होते नंबर ही हैं। अच्छा, ये आपका इसमें वो हो रहा होगा कि ये एक दफ़ा आपने सेट किया है, एग्जैक्ट डबल सेट किया, ये लाजमी कोई और चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं बोल दूँ कि पाई इक्वल्स 4.5, ये क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि द नेम पाई इज़ ऑलरेडी डिफाइंड, ये आपने कांस्टेंट करके कर दिया, तो आप ये इस किस्म की चीज़ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट चेंज इट, यू ऑलरेडी डन इट वंस, व्हाई चेंजिंग इट अगेन? इट्स अ कांस्टेंट, and a constant is better than a final. So the point of the constant is that Suhaib is setting the value of 3.14 here. Suhaib or whoever the coder is. For example, if your name is Mudassir or Laiba or whatever your name is, if I'm writing ABCD here, I am the person who set this here. How is final different? Final is different in if I write final double equals to some double value and I make a function here. I'll explain this and it will make just a bit of sense in return 3.4222. अच्छा, तो आपके const double by weird. अच्छा, ये it's some import stuff, never mind. Okay. Imports and packages that I explained earlier, when you need some code that is I think Dart should have a float type. What is Dart's Dart decimal type? Oh, sorry, yeah, this was the issue actually. Const double pi was fine. What I've done here was I'd given the variable name as double, which is a very wrong thing to do. So final double D, this is fine now because double is your data type. आप पहले ऐसा ये ना लिखना लाजमी नहीं होता। अगर आप फाइनल ना लिखें, कॉन्स्ट ना लिखें, तो इट विल ऑटोमेटिकली कंसिडर इट एज अ VAR वेरिएबल, जो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। खैर, फाइनल इसके बाद आप ये देखते हैं, ये भी शायद देना लाजमी नहीं है। अच्छा हाँ, डार्ट में आपको डेटा टाइप पास करना भी लाजमी नहीं होता, वो खुद ही इन्फर कर लेता है। सो टाइप इन्फ्रेंस इज़ बेसिकली डबल एक टाइप है, स्ट्रिंग एक टाइप है, इंट एक टाइप है। अगर आप ये चीज़ें नहीं दें तो वो इन्फर यानी कि तुक्का लगा लेता है बेस्ड ऑन जो भी चीज़ यहाँ आ रही है कि वो डेटा टाइप्स का क्या होगा। इस किस्म का फीचर अगर आपने पाइथन में पहले काम किया है तो पाइथन में भी होता है, लेकिन मेरे ख्याल से जावा में ये नहीं होता। जावा में आपको लाजमी पास करना पड़ता है। आगे हम बढ़ें, ये तो सही था, मैं चलो आगे बढ़ते हैं। फाइनल में ये होता है कि आप जिस जगह पे डिक्लेयर कर रहे हैं, अच्छा जहाँ मैंने इसको बताया है ना कि इसका डेटा टाइप डबल होगा और इसका ये फाइनल होगा, उसको कहते हैं डेक्लेरेशन। डेक्लेरेशन ये होती है सबसे पहली जगह जहाँ मैंने इस नाम को, मीनिंग दिस नेम इज़ हियर डी, राइट। अ डेक्लेरेशन इज़ व्हेन द फर्स्ट टाइम यू आर सिक्योरिंग दिस नेम, दैट टाइम उस वक्त आपको एक मौका मिलता है फाइनल का वैल्यू सेट करने का। अब चाहे वो एक इंस्ट्रक्शन हो, जैसे कि फाइनल डबल डी इक्वल्स 1+2.0, राइट। अगर ये चाहे ये एक इंस्ट्रक्शन हो या फिर ये मल्टीपल इंस्ट्रक्शन हो, सही है, इन द फॉर्म ऑफ दिस मेथड दैट आई एम रनिंग। इसमें मैं हज़ारों लाखों करोड़ों कोई इंस्ट्रक्शन में रन कर सकता हूँ उसमें, जो है ना, अगर मैं चाहूँ तो। लेकिन द पॉइंट इज़ के डबल एक रन टाइम कांस्टेंट है। सो योर कॉन्स्ट इज़ अ कंपाइल टाइम कांस्टेंट एंड योर फाइनल इज़ योर रन टाइम कांस्टेंट। एंड द डिफरेंस इज दैट कंपाइल टाइम, कंपाइल करते वक्त, यानी कि कंपाइल करने से पहले कौन जिम्मेदार है कोड का? मैं, कोडर, या जो भी आपका नाम है, कॉन्स्ट वाले डालते हैं उसकी वैल्यू।
और रन टाइम कांस्टेंट का क्या मतलब है? रन टाइम से पहले क्या चीज़ रन हो रही होती है, वो आपका जो रन टाइम के दौरान, जहाँ मैंने नाम इसका सिक्योर कर दिया ना डी, या अगर मैं इसको थोड़ा लंबा नाम दे दूँ, माई डबल, सही है। रन टाइम के वक्त जो ये फंक्शन रन होगा तो ये रिटर्न कर देगा, ये असाइन हो जाएगा, और फिर आफ्टर दिस लाइन इज फिनिश रनिंग, आफ्टर दिस लाइन इज फिनिश रनिंग योर वैल्यू विल बी सेट इन स्टोन, वो पत्थर की लकीर बन जाएगी। फाइनल का मतलब रन टाइम कांस्टेंट ये है कि ये एक दफ़ा रन होके ये पत्थर की लकीर बन जाएगी। कांस्टेंट का मतलब ये है कि मैंने, सोहेब ने, आयशा ने, अली ने, जो भी आपका नाम है, आपने एक दफ़ा यहाँ 3.14 लिख दिया, आपने एक दफ़ा यहाँ ABCD लिख दिया, ये पत्थर की लकीर बन गई। और इसका मकसद क्या है करने का? वो है परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस से इसका क्या असर पड़ता है हम इसके बाद बात करेंगे, जब मैं आपको फाइनल चीज़ बताऊंगा, जो है कि वेरिएबल, it is a variable, whereas all of these things, this my double is a property, pi is a property, s is a property, अक्सर आप रेफर इसको एज वेरिएबल भी करेंगे कि ये पाई वेरिएबल है, एस वेरिएबल है, वैसे ये कांस्टेंट है या फाइनल वेरिएबल है या कांस्टेंट वेरिएबल है, दिस इज़ अ वेरिएबल। इफ यू मतलब अक्सर चीज़ें मैं ये चाहूँगा कि आप लोग ये चीज़ समझें कि क्या चीज़ मुझे मालूम होने में अगर कन्फ्यूजन हो रही है वो जायज़ है। तो अगर आपको इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो रही है कि वेरिएबल ये है, बाकी की चीज़ें भी वेरिएबल हैं, लेकिन इसमें वेरिएबल अलग है, वो कन्फ्यूजन क्यों नहीं हो रही, वो चीज़ जायज़ है। इसको आप ऐसे समझ लें कि ये कांस्टेंट वेरिएबल है, ये फाइनल वेरिएबल है, और ये वेरिएबल है। अच्छा, वेरिएबल का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, ज़रा हम चेक करते हैं। द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल इज़ not consistent or having a fixed pattern, liable to change, able to be changed or adapted। क्या कांस्टेंट चेंज, ये तो क्या कांस्टेंट हमारा, अच्छा ये कट दबा के ये कर दें, ये ड्रामे हो रहे हैं इससे। अच्छा, क्या कांस्टेंट चेंज होता है आफ्टर वी हैव सेट इट? नो, इट इज़ नॉट लायबल टू चेंज। इज फाइनल लायबल टू चेंज? नो, वी सेट इट वन टाइम एंड देन इट्स डन। इज वेरिएबल लायबल टू चेंज? yes, so this is a, it will change। एंड होम का जो यहाँ पे हम देखते हैं ना इंट काउंटर, क्योंकि हमने इसको फाइनल या कॉन्स्ट का कीवर्ड, अच्छा ये फाइनल कॉन्स्ट ये कहलाते हैं कीवर्ड, क्योंकि ये उसकी कोई खासियत बयान कर रहे हैं, सही है। और ये डेटा टाइप कहलाता है इंट, क्योंकि हमने यहाँ फाइनल का कीवर्ड नहीं दिया है, क्योंकि हमने यहाँ कॉन्स्ट का कीवर्ड नहीं दिया। लाजमन इसने खुद ही, डार्ट ने, फ्लटर का जो फ्रेमवर्क जो भी चल रहा है, उसने खुद ही तक्का लगा लिया, उसने खुद ही अपने अंदाज़न बोल दिया कि ये होगा वेरिएबल ही, सही है। वैसे आई डोंट थिंक यू कैन टाइप वेर हियर ऑटोमेटिकली इधर। इफ़ यू वांट इट टू बी अ वेरिएबल दैट इज़ नॉट फाइनल और कॉन्स्ट, देन यू जस्ट डोंट ऐड वेर, वो खुद ही आपको कर देगा कि अगर ना फाइनल है ना कॉन्स्ट है तो फिर होगा लाजमी क्योंकि वो वेरिएबल होगा। उसका पॉइंट ही ये है कि, अच्छा मैं ये भी दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो है ना, अच्छा ये बीच में मैंने मसले कर दिए इसलिए इधर इसको हम कर देते हैं। अच्छा, कॉन्स्ट को मैंने आपको ये दिखाया था, पाई इक्वल्स 4.5 मैं अगर करूँ तो ये आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉन्स्ट की वैल्यू मैंने बता चेंज नहीं हो सकती। एक दफ़ा मैंने यहाँ डाल दिया है ना, मैं खुद कोड ये दोबारा चेंज नहीं होगी, ख़त्म हो गई बात। इसी तरह से फाइनल की वैल्यू एक दफ़ा आपने सेट कर दी ना सम डबल वैल्यू, अगर मैं इसके बाद माई डबल दोबारा सेट करूँगा इक्वल्स टू 4.5 तो ये एरर देगा। क्यों एरर देगा? फाइनल बोला था ना, एक मौका मिल गया, फाइनल को हमने एक दफ़ा यहाँ असाइन कर दिया, वो सही थी, यहाँ तक आपको एरर नहीं आया था, दोबारा क्यों करो? फाइनल का पॉइंट ही यही है, एक दफ़ा आपने रन किया फंक्शन या कोई भी इंस्ट्रक्शन है जो भी चीज़ है, फिर वो चेंज नहीं होगी। वेरिएबल का मकसद ही यही है। वेरिएबल का जो पूरा पॉइंट ऑफ एग्जिस्टेंस यही है कि मैं इंट आई इक्वल्स 36 कर दिया मैंने यहाँ पे, फिर आई इक्वल 67 मैं कर सकता हूँ, जो कि ये मसला दे रहा है। आई थिंक इट्स बिकॉज इट नीड्स टू बी इन अ फंक्शन। Let's just do that, right? If we put all of this in a main function, इसको ये भी कुछ चीज़ें हैं मैं, अच्छा ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये एरर क्यों आया था। गुड गुड सी, अच्छा
अच्छा, ये हमारे थोड़े आई जस्ट डिड सम क्लीन अप, राइट. सो द पॉइंट आई वाज एक्सप्लेनिंग वाज कि इंटीजर, अब मैंने जहाँ फाइनल नहीं पास किया, जहाँ कॉन्स्ट नहीं पास किया, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ फ़र्ज़ करें आप पढ़ लेंगे ये वेरिएबल है. मैंने इसको एक दफ़ा 36 सेट कर दिया, अब मैं इसको 67, मैं जितनी दफ़ा मैं चेंज करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ. यहाँ भी आप जो है चेंज कर रहे हैं. काउंटर प्लस प्लस का एक्चुअली मतलब ये होता है, आप लोग को शायद पता होगा, काउंटर इक्वल्स काउंटर प्लस वन. तो ये चीज़ हो रही है, ये आप चेंज ही कर रहे हैं, यही हो रहा है इसका मतलब है. सही है. अच्छा, ये बात समझ में आ गई. कुछ थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं स्कोप की. अच्छा, स्कोप ये होता है कि जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं ना, यानी कि डिक्लेरेशन की मैंने बात की थी कि जहाँ आपने पहला दफ़ा नाम सिक्योर कर लिया कि मेरा पाए ये है. सही है. उसके बाद आपका जो पेरेंट कर्ली ब्रैकेट इसके चल रहे हैं ना, उसके अंदर ही उसका स्कोप होगा. उसका मतलब ये है कि अच्छा, कॉन्स्ट और फाइनल तो चेंज हो नहीं सकते. आई का जो स्कोप है वो मेन फंक्शन है. आई में मैं मेन फंक्शन के अंदर ये चेंज कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं मेन फंक्शन के बाहर लिखूँगा कि आई इक्वल्स 5, तो ये मसला देगा, क्योंकि आई मेन फंक्शन के अंदर पैदा हुआ था और वो मेन फंक्शन जब ख़त्म होगा तो आई भी ख़त्म हो जाएगा. अच्छा, इसी तरह से ये क्या कहते हैं, आपके इशू आ रहा था कि जो ये फंक्शन से आप कोई सेट कर रहे हैं ना, अब वो फंक्शन या तो उससे पहले डिक्लेयर हो चुका हो या फिर उस फंक्शन के बाहर. अच्छा, उसके बाहर अगर डिक्लेयर होगा तो जैसे कि वो फाइल बनेगी तो वो चीज़ भी बन हो जाएगी. वेर एज अगर फंक्शन के अंदर है तो जब फंक्शन रन होगा तो फिर जब ये मेन फंक्शन रन होगा तो फिर ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, जबकि अगर ये फंक्शन के बाहर है तो फिर ये वैसे ही एग्जिस्ट करेगा हमेशा. सही है. इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको आप बाहर रख सकते हैं. मैं ये समझा रहा हूँ कि जिस वक्त पे आपने मेथड कॉल किया है तो वो मेथड या तो उसके स्कोप से बाहर हो या फिर वो उसके ऊपर हो. वो उसके बाद नहीं हो सकता. सही है. वो उसके बाद होगा तो वो ऐसा होगा कि वो किसी जो है फ्यूचर की चीज़ को भुला रहा है, कि वो बोला मैंने, मुझे तो पता ही नहीं है सम डबल वैल्यू का फंक्शन कहाँ है, मैंने तो कभी देखा नहीं है. अब मैंने देखा नहीं है तो मैं कैसे कॉल करूँगा इसको. इस किस्म की बात हो गई. आई वॉन्ट यू गाइज टू गिव मी 10 seconds and just like forward it. I will drink some water. Now that we have covered final const stateless stateful क्या होता है. अच्छा, होम्स, अच्छा ये फिर मैं मिटा देता हूँ, ये हमने सारा डिस्कस कर लिया है. सही है. जो आपका होम स्क्रीन है उसमें स्टेटफुल विजिट, एक जो हमारा हमने स्क्रीन को नाम दिया है माय होम पेज, उसका जो विजिट है वो हमें अलाउ करता है कि हम एक उसका कॉन्स्ट कंस्ट्रक्टर बना सकें. उसको हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ पास करें जो चेंज नहीं होंगी. जैसे कि अच्छा, ये चलो उसके बाद समझाता हूँ. जैसे ये हमने फाइनल की प्रॉपर्टी एक पास की हुई है माय होम पेज को. ये स्टेटफुल विजिट जो है, स्टेट वाले जो विजिट है उससे थोड़ी अलग इसलिए होती है. ये जो उसका स्टेटफुल विजिट है और ये उसका स्टेट वाला विजिट है, ये थोड़ी अलग इसलिए होती है कि ये हमारा एक तरह से लैंडिंग ग्राउंड होता है जहाँ पे हमने स्क्रीन को बुलाया है. होम कॉन्स्ट माय होम पेज. पॉइंट ये है कि ये एक तरह से हमें लैंडिंग पेज दे रहा है कि यहाँ पे आप जाएं और फिर जो हमारे स्टेट वाला विजिट है ना, ये जो बिल्ड विजिट इसके अंदर कॉल होगा, ये चेंज होगा बार 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 बार. ये जो यहाँ पे जो चीज़ें होंगी ना, ये चेंज नहीं होंगी. तो ये इसलिए इसकी दो क्लासेस हैं, और क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ चेंज हो नहीं रही यहाँ, इसलिए सिर्फ एक ही क्लास है. उसके बाद ये चीज़ आपकी आती है कि हम
ये तो आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था, आप STLS लिखते हो, फिर ये कोड कंप्लीशन के थ्रू या फिर जो है STFL स्टेटफुल विजेट ये खुद ही आपको बना के एक पैकेज दे देता है। ये सीन हो रहा है इधर। उसके अलावा पॉइंट ये था कि जो हमारी स्क्रीन पे दिखता है, यानी कि जो हमारा विजेट बन रहा होता है, ये सारी जो चीज़ें बन रही हैं ये हमारी बन रही हैं बिल्ड फंक्शन के अंदर, बिल्ड मेथड के अंदर, जो कि ये सारी चीज़ें रिटर्न करेगा। अब क्या होता है, इसके अंदर हमने ये काउंटर का विजिट दिया हुआ है टेक्स्ट विजिट को, कि ये टेक्स्ट है ना, जो हमारा काउंटर है 4 है जो भी है। अब ये हो रहा है चेंज, तो जब जब ये चेंज होगा तब तब ये जो बिल्ड फंक्शन है ये रीरन होगा। इसका मतलब ये है कि पहली दफ़ा सबसे जब स्क्रीन बनेगी तो ये एक दफ़ा बिल्ड फंक्शन रन होगा, तो फिर ये स्क्रीन सबसे शुरू में वजूद में आएगी। उसके बाद जब मैंने ये बटन दबाया है ना, ये यहाँ पे बटन का विजिट इन्होंने दिया हुआ है टेम्पलेट में, और उसका ऑन प्रेस्ड नहीं, ये दूसरा वाला है, सॉरी, ये जो मैंने एडिटिंग की है कुछ, दिस इज़ द ब्राउन बटन दैट्स सेपरेट, दे हैव गिवन द बटन हियर, एंड ऑन प्रेस्ड पे ये फंक्शन कॉल हो रहा है इंक्रीमेंट काउंटर का, एंड दैट गोज एंड सेज दैट काउंटर को आपने वैल्यू बढ़ा दी। अब ये जो काउंटर की वैल्यू बढ़ रही है वो सिर्फ कोड में बढ़ रही है, उसको अगर मुझे अपनी स्क्रीन पे वाजे करना है तो मुझे स्क्रीन पे बिल्ड फंक्शन दोबारा रन करना पड़ेगा, यानी कि मुझे स्क्रीन दोबारा बनानी पड़ेगी, स्क्रीन को मुझे मैसेज देना पड़ेगा कि कुछ बदल गया है, अब अपने आप को रिफ़्रेश करो। जैसे नहीं हम आई थिंक विंडोज़ पे जाके राइट क्लिक करके रिफ़्रेश करते रहते हैं जब हमारा पीसी हैंग हो जाता है, रिफ़्रेश कर रहे हैं, तो उस तरह से आपने इसको बोल दिया कि ये तुम रिफ़्रेश कर दो। वो क्या होता है, सेट स्टेट का फंक्शन है, कि सेट स्टेट ये कहता है कि मेरा स्टेट जो वेरिएबल से बना है वो वेरिएबल बदल गया है, अब तुम स्टेट को दोबारा सेट, क्योंकि मैंने स्टेट को दोबारा सेट किया है, यानी कि स्टेट को मैंने चेंज कर दिया है, तो तुम समझ जाओ कि तुम्हें कुछ काम करने होंगे, और सबसे बड़ा काम ही ये बिल्ड फंक्शन रन करना है, क्योंकि बिल्ड फंक्शन से आपकी पूरी स्क्रीन रीबिल्ड हो गई। So you understand the flow that is happening here is that I had given a widget of the floating action button here. Floating action button इसलिए अलग दिया हुआ है यहाँ पे कि ये एंड्रॉयड का मटेरियल थीम है। आप लोग को एक आर्टिकल दिया जाएगा पढ़ने को होमवर्क के तौर पे, जो कि ये बयान करेगा कि मटेरियल की कुछ चीज़ें होती हैं ऐसे कि फ्लोटिंग एक्शन बटन, जो आप नीचे ऊपर नीचे भी स्क्रॉल करोगे इसमें, क्योंकि स्क्रॉलिंग इतना अभी सीन है नहीं, लेकिन ये चीज़ ऊपर फ्लोट करती है, आप ऊपर नीचे जाओ ये कोने में ही रहेगी चीज़। उसको हमने फंक्शन पास किया था इंक्रीमेंट काउंटर का, जिसके अंदर हमने ये काउंटर का वेरिएबल चेंज किया था, और उसके ऊपर हमने ये सेट स्टेट का वेरिएबल लगाया था, यानी कि जब जब हम ये चेंज करते तब तक ये चाहेंगे हम कि बिल्ड फंक्शन रन हो, इसलिए ये हमारा इस तरह काम कर रहा है। सेट स्टेट का मकसद ये है कि वो बिल्ड फंक्शन दोबारा रन करे। बिल्ड फंक्शन का मकसद ये है कि हम ऐसे राइट क्लिक करके रिफ्रेश दबाते हैं अपने डेस्कटॉप पे जाके, वो इस तरह से चीज़ हो रही है। अच्छा, फिर विजिट यूआई लेआउट प्रोसेस, दोबारा हम थोड़े आते हैं फ्लो पे कि हम किस तरह से बना रहे हैं। यहाँ तक तो मैंने आपको बताया था इंपोर्ट और पैकेजेस की मैंने चीज़ बताई थी कि हर कोड हम एक फाइल में तो लिखते नहीं है। ये बेसिकली ये बता रहा है कि कोड कहीं ना कहीं मौजूद है, फ्लटर का कोड वो किसी और फाइल में पड़ा हुआ है, ये स्टैटिक स्क्रीन का भी कोड कहीं ना कहीं मौजूद है, ये किसी और फाइल में पड़ा हुआ है स्टैटिक स्क्रीन का, ये है ना। इसी तरह से हम नीचे आते हैं। अच्छा, डार्ट का मेन फंक्शन रन होता है, फ्लटर का रन ऐप फंक्शन रन होता है, उसमें हम माई ऐप पास कर रहे हैं, माई ऐप इज़ ऑल्सो स्टेटलेस विजिट। उसके बिल्ड फंक्शन में हम मटेरियल ऐप पास कर रहे हैं विच गिव्स इट सम एंड्रॉयड रिलेटेड थीमिंग टूल्स। थीमिंग टूल हम जो यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं, टाइटल भी इधर दिया हुआ है, होम पेज होम स्क्रीन सबसे बड़ी हमने यहाँ पे दे दी है कि सबसे आपका एंट्री पॉइंट, आप यहाँ घुस रहे हो एप्लीकेशन के अंदर। अच्छा, यहाँ आप घुस गए हो, स्टेटफुल विजिट है, उसके बाद ये इसका स्टेट वाली चीज़ बन रही है, बिल्ड फंक्शन कॉल होगा। बिल्ड फंक्शन के अंदर क्या चीज़ें हैं, उसकी क्या हायरार्की है, अब हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि स्कैफोल्ड का मतलब क्या है। स्कैफोल्ड यहाँ भी है, स्कैफोल्ड यहाँ भी है। स्कैफोल्ड इज बेसिकली टेलिंग यू दैट स्क्रीन है, ये स्क्रीन का विजिट है, स्क्रीन का ढांचा है, स्क्रीन का एक स्केलेटन है,
उसमें आपने आपको एक ऐप बार का ऑप्शन दिया है, उसमें आपको बॉडी का ऑप्शन दिया है, उसमें आपको फ्लोटिंग एक्शन बटन का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कंट्रोल स्पेस बार दबाएं तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके पास। स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर आपको सेट करना है, मैंने कलर्स डॉट येलो सेट कर दिया, सही है, तो वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपका बहुत वाहियात कलर जो येलो बन गया है, सही है। तो ये स्क्रीन का ढांचा एक हमेशा आप कॉल करते हैं। अगर मैं स्क्रीन का ऑप्शन यहाँ नहीं देता और मैं खाली जो है कोई सा भी जो बॉडी में विजिट जैसे मैं पास करते हैं, अगर मैं इसमें रिटर्न कर दूँ कोई टेक्स्ट विजिट, वो भी काम करेगा लेकिन वो बहुत अजीब सी बदसूरत सी चीज़ बन जाएगी, सही है। तो आप लोग भी चीज़ें तोड़ के देखें, अगर आप अनकन्वेंशनल तरीके से करते हैं तो क्या मसला आता है। ये भी वो, इफ़ यू गाइस हैव सीन द मूवी 3 Idiots, उसमें भी ये दिखाते हैं कि इट्स एन इंजीनियरिंग शो, नहीं मतलब दिस एन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एंड द पर्सन हु एंड्स अप बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट, ही इज़ लाइक ब्रेकिंग एवरीथिंग इन द यूनिवर्सिटी, ही ओपन्स द फ्रिज डोर एंड द फ्रिज डोर इज ब्रोकन। सो द गुड थिंग अबाउट ब्रेकिंग सॉफ्टवेयर इज you cannot really break software that much, right? At worst it's not like a physical cost, so you break it, then you just press Ctrl Z, सही हो गया। खैर ऐप बार आप लोग खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं इसमें कंट्रोल स्पेस बार वाली चीज़ करके। बॉडी में हम मेन चीज़ पास कर रहे होते हैं। अच्छा, आप लोगों के पास यहाँ पे होगा कॉलम। कॉलम का मकसद ये होता है कि वो चीज़ों को इस तरह से लाइन में अरेंज कर देता है। अब कॉलम के भी कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, ये आप चीज़ें चेक कर लें। सेंटर में अगर मैं कर दूं इसका मतलब ये होता है कि कॉलम की मेन अलाइनमेंट होती है अप टू डाउन, तो उसकी मेन अलाइनमेंट को भी आप चेंज कर सकते हो। आप मेन अलाइनमेंट को हम चेंज करेंगे तो फिर डॉट स्पेस बिटवीन अगर आप कर देंगे तो फिर ये बेसिकली हर विजिट के बीच में स्पेस दे देगा। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है तमीज़ से लाइन में खड़ा कर देगा सबको। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट का मतलब होता है लेफ़्ट टू राइट। आपने इस वाली हॉरिजॉन्टल एक्स, अगर कॉलम तो होता ही जाहिर लाजमी कॉलम वर्टिकल होता है, तो उसकी जो क्रॉस एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल होगी। वो या तो आपने दरमियानी यानी कि सेंटर यानी कि बीच का रख दिया है, या फिर आप कुछ करके स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट में आपका लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा इस तरह से। खैर यू कैन डिस्कवर दीज थिंग्स। कॉलम की तरह यू हैव द रो विजिट। As you can guess what a row widget would do. Okay, now this is throwing some error. This is throwing some error. What is the problem? The problem is that we have your phone screen and we have passed it too many widgets. The screen space has run out. What we're going to do now is we're going to make it scrollable. Is it scrollable right now? No, it's not scrollable. A column widget, not scrollable. A row widget, not scrollable. To make it scrollable, we can do two things. The main thing is if you pass it to a list view, right? हमने लिस्ट व्यू यहाँ कर दिया। अच्छा, लिस्ट व्यू जो है ना आपका डायरेक्शन भी ये लेता है। अगर आपने डायरेक्शन पास नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेगा इफ़ आई डोंट पास दिस थिंग टू द लिस्ट व्यू इज़ अ स्क्रोलेबल अरेंजमेंट। सो लिस्ट व्यू करता ये है कि अच्छा, लिस्ट व्यू बेसिकली ये करता है। अच्छा, कॉलम क्या करता है? कॉलम आपके विजिट्स को लाइन में अरेंज करता रहता है। एक वक्त पे जाके आपकी स्क्रीन की स्पेस हो गई ख़त्म, तो कॉलम अक्सर जगह पे मसले दे देगा। कुछ जगहों पे सही होता है लेकिन कॉलम इस्तेमाल करना वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। रो भी यही चीज़ करता है। रो में आपने यूँ लगाया, कुछ यूँ लगाया, स्पेस हो गई ख़त्म, आपको एरर दे देगा ये। तो उसका सॉल्यूशन ये होता है कि आप डालते हो लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू बेसिकली ये करता है कि आपके फ़ोन को बता रहा है कि मेरे पास एक एंडलेस किस्म की चीज़ पड़ी हुई है, ये इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। अब मैं जितनी चीज़ें चाहूँ मैं यहाँ डाल सकता हूँ, यहाँ डाल सकता हूँ। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्या चीज़ है? ये आपकी हो जाती है स्क्रोलेबल। तो लिस्ट व्यू इन सारे विजिट्स को लोड करता है, और जब ये स्क्रीन पे आप स्क्रॉल करेंगे तो फिर दिस विल कम इनटू योर विजन। ये दिस इज़ अ हॉरिबल डिपिक्शन ऑफ एन आई that as it scrolls it will come onto the phone screen and become visible, and by default it is a list view is in the form of a column.
but you pass a scroll direction to it with the axis dot horizontal. That will make it a scrollable this way it will become scrollable. So we will scroll it like this and we'll see that it now works this way. Okay. So we've discussed column, we've discussed row, we have discussed list view. Another thing for you guys to discuss on your own is the wrap widget. What the wrap widget does, a wrap widget basically says that this is my phone screen, right? And if I'm placing for example 7 circles and 7 circles में से मेरे 3 सर्कल ऐसे प्लेस हो गए, यहाँ प्लेस ख़त्म हो गई तो वो इधर से आना शुरू हो जाएगा, सही है। तो रैप विजेट भी आप लोग एक्सप्लोर कर लेगा। इट्स लाइक वो पहले यूँ जाता है, फिर वो अगली लाइन पे जाता है, फिर वो अगली लाइन पे जाता है, फिर वो अगली लाइन पे जाता है, इस तरह से करता है। अच्छा, विजेट ट्री क्या होता है? हम बिल्ड फंक्शन में कोई विजेट पास कर रहे हैं, स्कैफोल्ड को हम चिल्ड्रन विजेट पास कर रहे हैं, लिस्ट व्यू को हम चिल्ड्रन विजेट पास कर रहे हैं। इस तरह हम जो है, इफ़ यू हैव समथिंग राइट एंड यू I don't fully know how to use this app, so new blank image. Okay, so if we have a widget and we're passing it 2 widgets and then we are passing it, so this is making a tree, right? Now this tree has to be built in a certain way to fulfill some requirements. कुछ लिमिट्स हैं आपकी, कुछ चीज़ें हैं, कुछ रियलिटीज़ हैं जिनकी बिना पे आपको लाजमन एक प्रोसेस, एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा विजेट्स बिल्ड करने का। अच्छा, विजेट बिल्ड करने का मतलब क्या होता है? आप ये देखो, फ्लटर में मैंने बात बताई थी ना कि हर चीज़ विजेट होती है। एक्चुअली आपकी स्क्रीन भी विजेट है। ये स्टेटफुल विजेट लिखा है, माई होम पेज इज़ अ विजेट दैट इज़ बीइंग बिल्ड। बिल्ड इज़ द पास्ट टेंस ऑफ बिल्ड, राइट? तो जब होम स्क्रीन आपकी ये बिल्ड होती है, उसके अंदर लिस्ट व्यू बिल्ड हो रहा है, क्योंकि लिस्ट व्यू में भी अगर आप जाएं, सो लिस्ट व्यू इज़ एक्चुअली ऑल्सो, दीज आर ऑल ऑफ दीज आर विजेट्स एज वेल, राइट? टेक्स्ट भी आपका कोई विजेट है, राइट? टेक्स्ट इज़ योर स्टेटलेस विजेट। ऑल दीज एक विजेट बिल्ड हो रहा है, उसके अंदर विजेट्स बिल्ड हो रहे हैं, उसके अंदर दिस इज़ अ ट्री स्ट्रक्चर। विजेट बिल्ड हो रहा है, उसके अंदर विजेट बिल्ड हो रहा है, उसके अंदर विजेट बिल्ड हो रहा है। मसला कहाँ आता है? मसला आपका आता है, अभी हम देखते हैं मसला कहाँ आता है। ये लिस्ट व्यू है, सही है। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका कोई इतना पॉइंट नहीं बन रहा, सही है। मसला यहाँ पे आएगा कि मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि लिस्ट व्यू इज़ लाइक you have your phone screen and list view says that you have unlimited space, just put whatever it is और हम scroll करेंगे तो नीचे आता रहेगा। अगर मैं लिस्ट व्यू के अंदर कॉलम डालूँ, सही है, वो भी इतना मसला नहीं। अच्छा, लिस्ट व्यू के अंदर अगर मैं कॉलम डाल दूँ कि मैं 5 सर्कल आए, वो भी इतना मसला नहीं करती चीज़, क्योंकि कॉलम का साइज़ रिस्ट्रिक्टेड होता है यूजुअली। कॉलम वो भी हम चलो बाद में डिस्कस करते हैं, एक मसला आता है। लेकिन अगर अनलिमिटेड चीज़ के अंदर मैंने लिमिटेड चीज़ डाल दी, सही है, वो चीज़ें आप डालते रह सकते हैं, लेकिन क्या मैं लिस्ट व्यू के अंदर लिस्ट व्यू डाल सकता हूँ? यानी कि अनलिमिटेड चीज़ के अंदर अनलिमिटेड चीज़ डाल दी, ये तो फ्लटर का दिमाग फट जाएगा। फ्लटर विल बी लाइक कि ये क्या कर दिया, ये क्या हरकत कर दी। The reason of explaining this with these awful diagrams, which I don't know you guys will whether understand or not, is that there is a concept of constraints. Constraint आपका ये होता है कि आप इस हद से आप आगे नहीं बढ़ सकते। Constraints का मतलब होता है और लेना देना होता है साइज से, साइजिंग से। यानी कि अगर मेरी फ़ोन की स्क्रीन यहाँ पे है, इसको हम जो है मिटा देते हैं। इसको हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मिटाया तो डिफ़ॉल्ट ये वर्टिकल एक्सिस में ले लेगा। इसके अंदर अगर मैंने लिस्ट व्यू के अंदर लिस्ट व्यू पास कर दिया, सही है, और ये ढेर सारे इशू देना इसने मुझे शुरू कर दिया होगा लाजमन। इसको अगर मैं रीस्टार्ट कर दूं तो
हाँ, it's going to disappear. That's because this does not know what size it needs to be. लिस्ट व्यू को भी आपने लाजमी, अगर आपको कोई चीज़ स्क्रोलेबल बनानी है तो आपको उसके अंदर चिल्ड्रन पास करने पड़ेंगे ना, भले आपका टेक्स्ट में चाइल्ड पास कर रहे हो इस तरह से। तो इसको जब आप ऐसी अनलिमिटेड चीज़ के अंदर अनलिमिटेड चीज़ बना रहे हो, दैट डज नॉट मेक सेंस टू फ्लटर, एंड दैट डज नॉट मेक सेंस लॉजिकली एज वेल. सो नाउ आई गेट टू एक्सप्लेनिंग हाउ फ्लटर लेज आउट विजेट्स. कुछ विजेट्स आपके होते हैं जिनका होता है फिक्स्ड साइज विजेट्स, मीनिंग टेक्स्ट का विजेट है जिसमें मैंने बोल दिया इस तरह की चीज़ होगी, वो फ्लटर अंदाज़ा लगाएगा कि ये जो है फिक्स्ड साइज होगा इसका, जो पहली दफ़ा रन करेगा फॉर 400 पिक्सल अगर होंगे. अच्छा, एक और मैं बात बता दूं, जब जब आप लोग स्क्रीन रोटेट करेंगे तब भी बिल्ड फंक्शन रन होता है. सो जस्ट अ थिंग ऑन द साइड. एनीवे, टेक्स्ट का फिक्स साइज होगा क्योंकि वो एक दफ़ा बिल्ड फंक्शन ने मालूम कर लिया है. दूसरी चीज़ ये होगी कि अगर मैं कंटेनर का फंक्शन बनाऊँ, जो कि मैं इधर बना के आप लोग को दिखा देता हूँ, ये मैंने फिक्स कर दिया है, सो दिस शुड वर्क फाइन. अगर मैं कोई विजेट बना रहा हूँ और मैं उसको हाइट दे रहा हूँ 200 और विड्थ दे रहा हूँ 200 और कलर दे रहा हूँ कलर्स डॉट पिंक, सही है. दिस इज़ ऑल्सो अ फिक्स्ड साइज विजेट 20. ये भी लिस्ट व्यू का एक क्वर्क है, इसको हम भी बाद में एक्सप्लेन कर देंगे कि वाई स्ट्रेच्ड, सही है. और इनफैक्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक स्ट्रेचिंग क्या होती है. एनीवे, कुछ विजेट्स का साइज़ हम खुद एक्सप्लिसिटली यानी कि ख़ास तौर पे बोल के हम दे रहे हैं, तो वो भी फिक्स्ड साइज विजेट हो जाते हैं. कंटेनर विद गिवन हाइट इज़ अ फिक्स्ड साइज, सही है. बट देन यू हैव विजेट्स दैट आर साइज डायनामिकली, यानी कि अगर मैंने किसी विजेट को बोला कि तुम जो है पूरी हाइट ले लो, यानी कि ये डबल डॉट इन्फिनिटी ले लो, तो ये आपको देगा इशू देगा. ये इश्यूज आ रहे हैं जो कि आपको फ़ौरन नहीं नज़र आएंगे. अगर कोई साइजिंग इशू है, कभी कभार क्या होता है आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है ऐप को. हॉट रीलोड और हॉट रीलोड इज़ बेसिकली just calling the build function again, and hot restart is starting the app again. Sometimes hot restart then starts from the home page, which is I think hot restart is coming from this place, and for most things hot restart should be enough अगर आपको बिल्ड फंक्शन के अलावा कुछ करनी है, सिवाय अगर आप कोई फाइल्स इंपोर्ट करें, जो हम pubspec.yaml के पार्ट पे जब हम आएंगे तो मैं डिस्क्राइब करूँगा. द पॉइंट ऑफ सेइंग दिस वाज कि कभी कभार आपके जो इश्यूज आते हैं तो आप रीस्टार्ट करके देखोगे तो ये मसला आएगा इज़ कि जो मैंने डायनामिक साइज़, अगर मैंने बोल दिया कंटेनर को, पहले मैंने 200 दिया था तो ये तमीज़ से बिहेव कर रहा था. इसको मैंने जब डायनामिकली साइज़ करने का बोला, जब मैंने इसको बोल दिया कि पूरी जितनी जगह हो सकती है उतनी जगह ले लो, तो फिर वो मसला करेगा. तो दिस इज़ गोइंग टू बी एनी विजेट हुज हाइट इज़ अनबाउंडेड, नहीं कि उसकी कोई बाउंड्री नहीं है. उसको हम कभी कभार जो है हाइट दे देते हैं डबल डॉट इन्फिनिटी. डबल डॉट इन्फिनिटी क्या है? डबल डेटा टाइप था और डेटा टाइप से निकल के इन्फिनिटी कुछ आ रहे हैं. हम देखते हैं इन्फिनिटी क्या होता है, इसने डिस्क्रिप्शन ही दी हुई. बेसिकली इट्स द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डबल. अच्छा, any widget whose height is unbounded will be or has double or infinity size, वो dynamic sizing में आता है. any widget sized by flex factor. Now I'm going to ask you for 20 seconds again. I'm just going to drink water and I'm going to get a glass and a bottle with myself. Just forward the video.
So Flutter organizes widgets जिनका size fixed नहीं होता through a concept called flex. Okay, what flex does is you have the widgets that are sized, जिनका फिक्स साइज होता है उनकी पहली प्रायोरिटी है, उनको तो ये स्पेस चाहिए ही चाहिए, लाजमी चाहिए. आप इसके अराउंड आप यू आर नॉट गेटिंग अराउंड दिस, दे हैव टू हैव द फिक्स साइज. देन व्हाट हैपन्स, you have all this leftover space. Now Flutter will distribute this leftover space to the widgets based on their flex factor. उसका मतलब ये है कि जब आपने जो स्पेस पे कब्ज़ा हुआ था, फिक्स्ड साइज़ था, जो आपको मर्जी नहीं है आपको लाजमन देने हैं, उसको छोड़ के जो आपकी स्पेस बचती है उसका आप बंटवारा करेंगे बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस. एंड हाउ डू दोस फ्रैक्शंस वर्क? दे वर्क लाइक दिस. If I have an expanded widget, right, and actually no, we will do this in column just now, right. अच्छा, मैंने ये अभी क्या क्यों मैंने चेंज किया है, ये मैंने इसलिए चेंज किया है क्योंकि इसमें हम एरर देखेंगे. अच्छा, इसमें अगर मैं दे भी हूँ ना चाइल्ड विजेट तो फिर भी मसला आएगा. वो इसलिए क्योंकि लिस्ट व्यू says that you have unlimited space, and if you are putting an expanded widget in it, if you are telling a widget that take up all the space, that won't work, because ऐसे सेम एज पुटिंग लिस्ट व्यू के अंदर अपने अनलिमिटेड हाइट की चीज़ के अंदर अनलिमिटेड हाइट की चीज़ नहीं डाल सकते हैं. सही है. तो ये जो एक्सपेंडेड वाली जो अभी जो मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा वो यूजुअली कॉलम में अप्लाई होती है. कॉलम को हमने चाइल्ड पास कर दिया, फर्ज करें कंटेनर, इसको हमने पास कर दिया कलर्स डॉट पिंक, एंड विड्थ को हमने दे दिया 200, सेव. What the expanded widget will do is it will say that take up all the space, but behind the scenes the expanded widget also has a flex of 0 तो गायब हो गया खैर, but it has a flex of I believe null भी नहीं है तो क्या है flex of, अच्छा खैर हाँ, तो ये आपका flex of, हाँ. So an expanded widget will take up all the space, or you can provide a flex widget. अभी कॉन्सेप्ट इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि फ्लेक्स का जो कॉन्सेप्ट है फ्लेक्स फैक्टर का, इट इज़ रिलेटिव टू द अदर डायनामिकली साइज्ड ऑब्जेक्ट्स. मीनिंग कि जब आपके पास एक ही विजेट है पूरी, जब आपके पास एक ही विजेट है पूरी जगह लेने का, तो बंटवारा लेने का कोई कॉन्सेप्ट ही पैदा नहीं हो रहा ना. मीनिंग अगर आपको कोई चीज़ बांटनी है, इफ़ यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अ पिज़्ज़ा इनटू बिटवीन 3 people, then it makes sense to have some concept to distribute it. But if there is only one person eating the whole pizza, then they're going to eat the whole pizza. There's no concept to it. But when you begin to have these two things, then the concept will start to make sense. इसका मतलब ये है कि दो एक्सपेंडेड विजेट्स हैं, दोनों का फ्लेक्स फैक्टर 1 है, तो इसको 1 पार्ट जाएगा, इसको 1 पार्ट जाएगा. टोटल कितने पार्ट्स हुए? 2. अगर आपकी मैथ थोड़ी वीक है तो आपको थोड़ा इसमें फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट रिवाइज करना पड़ेगा शायद जाके. सही है. इसका मकसद ये है कि अगर मैंने इसको यहाँ 3 दे दिया, इसको यहाँ 2 दे दिया, तो 3 + 2 क्या होता है? 5. जितने भी आपके डिस्ट्रीब्यूट होने वाले विजेट्स हैं ना, जितने भी आपके डायनामिकली साइज्ड विजेट्स हैं, उनका फ्लेक्स फैक्टर ऐड होगा. सो नाउ बिकॉज दिस हैज़ 3 parts, दिस हैज़ 2 parts, वी हैव अ टोटल ऑफ 5 parts. The pink box gets 3/5 of the space. We didn't save it, sorry. Keep in mind this, there's a black dot that shows up here for unsaved things, right? So 3/5 goes to pink, 2/5 goes to yellow. Similarly, अगर आप 6 कर दें यहाँ पे और 2 कर दें यहाँ पे, तो 6/8 goes to pink, right? And 2/8 goes to yellow. And this, इसको आप क्योंकि ये फ्रैक्शन है, इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. सही है. इसके 6 और 2 के बजाय हम यहाँ 3 और 1 अगर करें, सही है. अगेन ऑन द ब्लैक डॉट हियर इट मीन्स इट्स अनसेव्ड, हम सेव करेंगे तो काला डॉट निकलेगा. 6, 2 और 3, 1 में कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि ये फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट चल रहा है. सही है. तो फ्लेक्स फैक्टर के बेसिस पे आपकी जो लेफ़्ट ओवर स्पेस है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है.
चीज़ के लिए लाजमी है कि आपके पास कोई लेफ़्ट ओवर स्पेस हो। सही है। अगर आप कोई कॉलम बना रहे हैं और कॉलम में जगह ख़त्म हो गई है तो फिर लाजमी बात है कि आप इस किस्म की चीज़ डाल नहीं सकते हैं। उस सिनेरियो में आप डालेंगे लिस्ट व्यू। अब हम आते हैं लिस्ट व्यू की डिस्ट्रीब्यूशन पे। उसमें क्या होता है आपके देखते हैं क्या होता है कि इफ़ वी पुट अ लिस्ट व्यू हियर, right, and we save it, then we are going to get a bunch of issues. This whole thing disappears because as I had explained earlier, आप जो है अनलिमिटेड चीज़ में आप अनलिमिटेड चीज़ के अंदर आप अनलिमिटेड चीज़ नहीं डाल सकते। सॉर्ट ऑफ अनएक्सप्लोर्ड इलॉजिकल किस्म की ये चीज़ है। तो उसमें हम क्या करेंगे, अगर आपके पास है ही अनलिमिटेड स्पेस तो फिर आपको जो है साइज़ लाजमी देना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि कंटेनर में मेरी हाइट है 300 और उसको मैं विड्थ दे देता हूँ विड्थ, अच्छा विड्थ भी आते हैं, हाइट 300 है और कलर जो है कलर्स डॉट ब्राउन, राइट। ये पिछले एरर थे, उसके बाद मैं दो दफ़ा मैं ये रन कर चुका हूँ तो वो सही चला है। सही है। अच्छा, लिस्ट व्यू में आप एक्सपेंडेड पास नहीं कर सकते। एक्सपेंडेड सिर्फ कॉलम या रो में पास कर सकते हैं। 300 की मैंने ये पास कर दिया और ये कलर्स डॉट ब्राउन हो गया। अच्छा, फिर द कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन वुड बी दैट इनसाइड अ लिस्ट व्यू you can have nested list views. That's not impossible. मतलब मैंने अभी ये बात आप लोग को बताई थी कि लिस्ट व्यू अनलिमिटेड स्पेस लेता है। अनलिमिटेड स्पेस के अंदर अनलिमिटेड स्पेस डालना इलॉजिकल सी बात है। लेकिन अगर मैं लिस्ट व्यू अगर मेरे पास है जो कि सही है, अनलिमिटेड है, उसके अंदर अगर मैं लिमिटेड स्पेस के अंदर लिस्ट व्यू बना दूँ तो वो उसका स्कोप ये वाले है। मीनिंग इफ आई कैन नॉट मेक अ लिस्ट व्यू इनसाइड अ लिस्ट व्यू प्लेनली, बट आई कैन मेक अ फिक्स्ड साइज हियर एंड देन पास अ लिस्ट व्यू टू इट। मीनिंग I can make a list view here if I restrict its height. So if I will have its children here and I will have something text A, B, C, D. अच्छा, and then I will also explain what some of these things are. is 30 कर देते हैं इसको। अच्छा, ये जो /n है इसका मतलब है नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर। जब आप स्ट्रिंग्स लिख रहे होते हैं डार्ट में, यू कैन नॉट प्रेस एंटर टू गो टू द नेक्स्ट लाइन, दैट विल कॉज एन एरर। टू रिप्रेजेंट अ लाइन ब्रेक, मीनिंग जब हम एंटर दबाते हैं अपने कीबोर्ड पे, उसको करने के लिए हम जो है क्या करते हैं, ऐसे करते हैं कुछ। अच्छा, ये स्क्रोलेबल हो रही है, इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बुरी होगी, वो फ्यूचर में आप सीख सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आपको किसी अनलिमिटेड लिस्ट व्यू साइज़ है उसके अंदर आपको कोई चीज़ डालनी है, इसमें आपको मसला हो रहा है, आप ये कर सकते हो कि उसके पेरेंट को आप कंटेनर में डाल दो या फिर एक साइज़ बॉक्स वाली चीज़ होती है उस पर डाल दो। सही है, ये सीन है। इसके बाद हमें क्या सीखना था, हमने अभी सीखा ये है कि पहले जिन विजिट का साइज़ फिक्स्ड होता है वो लेआउट होते हैं, उसके बाद लेफ़्ट ओवर स्पेस के अंदर डायनामिकली साइज्ड विजिट्स प्लेस होते हैं और उनका स्पेस का बंटवारा होता है उनके फ्लेक्स फैक्टर के बेसिस पे। फ्लेक्स फैक्टर सिंपली आपका एक इंटीजर वैल्यू होती है जिनको मिला जुला के वो कुछ पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट से सिमिलर है। इसको आप पार्ट को आप रिप्ले कर दें वीडियो को अगर आपको समझ में नहीं आ रही है बात। फ्लेक्स का कॉन्सेप्ट समझा दिया। कंस्ट्रेंट मैनेजमेंट। अच्छा, अक्सर आपको इस किस्म के इश्यूज आएंगे जिसमें जो है, मैं अभी ब्रेक करके था, व्हेन यू गेट दीज काइंड्स ऑफ इश्यूज एंड देन यू ट्राई टू फिक्स देम, यू स्टार्ट फिक्सिंग देम, एंड आप लोग को समझ में नहीं आ रही ना बात, तो आप लोग फिर क्या करो, स्कैफोल्ड से शुरू करो। स्कैफोल्ड से हम शुरू करेंगे, हम नीचे आएंगे। अच्छा, उसके बाद लिस्ट व्यू आया, सो यू ऑलवेज स्टार्ट योर कंस्ट्रेंट मैनेजमेंट फ्रॉम द टॉप। एंड लिस्ट व्यू का कॉन्सेप्ट मैं ये बता देता हूँ। लिस्ट व्यू आपका
जब पास करता होता है ना बॉडी में, द लिस्ट व्यू टेक्स अप ऑल द स्पेस इट हैज़ अवेलेबल टू इट. सो द ऐप बार स्पेस इन द स्कैफोल्ड इज रिजर्व्ड हियर. फ्लोटिंग एक्शन बटन जो है एक स्टैक की तरह उसके ऊपर बैठा हुआ है, और जो बॉडी का जो एरिया है वो सारा ये एरिया है. तो लिस्ट व्यू एक्सपैंड होके पूरी ये स्पेस लेगा और उसके अंदर वो अपने विजिट प्लेस करना शुरू कर देगा. और फिर उसके बाद आप देखोगे अगर मेरा कोई विजिट उसके अंदर फट रहा है, इसको उर्दू में हम ये कहते हैं विजिट फटना, एटलीस्ट माई इंस्ट्रक्टर एट स्कूल कॉल्स इट फटना, बट ओके. सो व्हेन दिस कंस्ट्रेंट इश्यूज आर हैपनिंग, यू स्टार्ट debugging it, meaning you start understanding and trying to fix it from your scaffold body, and you go from a top down approach. This thing will happen a lot when you are initially making apps. Constraint management flex widget column row कर लिया था using expanded और flexible. अच्छा, column row की मैं कुछ खासियत बता दूँ. अच्छा, इसको भी मैं डालता हूँ कंटेनर विजिट में. अच्छा, कलर्स डॉट पिंक. ओके, कॉलम में लिस्ट व्यू का इशू होता है ना, इसलिए इशू रहा था. हाँ, कॉलम में आप लिस्ट व्यू क्यों नहीं डाल सकते? कॉलम में आप लिस्ट व्यू भी नहीं डाल सकते. चेक करते हैं. कॉलम में आप लिस्ट व्यू भी नहीं डाल सकते क्योंकि कॉलम does not take up all the space right away. And this is what we're going to talk about right now, that okay, no, it has taken up the space here. Main exercise dot min. I'll explain this, 1 second. Okay, column की एक property होती है main access size की, where as we had discussed, the list view widget already expands to take up all the space it has available to it, and the column does the same thing, but in some cases that will become a problem and you don't want that. For example, if you have a list view and you are putting a column inside it, and again it is getting that concept to take up all the space, right? Sometimes what you have to do, column में property pass होती है main access size की, जो by default max होती है, उसको आप main access size dot min करते हैं. What this does is that instead of it just takes up the space of its children widget and no more space. Okay, then review listing आप इसको भी चलो बस कर डालते हैं. pubspec.yaml पे आते हैं. अच्छा, so we've covered a lot of the class. Now we get to some more specific, less concept heavy topics. फोल्डर्स की हायरार्की हमने की थी फ्लटर में फर्स्ट सेशन में. उसके बाद pubspec.yaml की फ़ाइल होती है, थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है. उसमें pubspec.yaml आप काफ़ी काम करेंगे इसके साथ. इसका नाम seems very complicated, but don't be scared by that. It's mostly just the name that's confusing. नेम से नीचे तक आप आएंगे. These are some things that have to do with the release और version. आप एंड कर दोगे, आपको प्ले स्टोर पर डालनी है, उसके बाद आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा, वरना आप इग्नोर मारो. फिर कुछ चीज़ें होती हैं आपकी, ये पैकेजेस से लेना देना होता है, वो भी अभी आप छोड़ दो. पैकेजेस वगैरह का क्या सीन चल रहा है, वो भी इतना इधर से मैनेज नहीं करने पड़ता शुरू में. फिर आपकी कुछ चीज़ें होती हैं फ्लटर की कॉन्फ़िगरेशन, विच इंक्लूड्स द एसेट्स दैट यू आर इम्पोर्टिंग. एसेट इम्पोर्टिंग इज़ इम्पोर्टेंट. वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट? आई विल एक्सप्लेन. आपके पास थोड़ी ना इस तरह से होगा, नीचे आप जाओ, इस तरह से बना हुआ होगा. अगर आपको कोई पिक्चर डालनी है फ्लटर के अंदर जो आप डाउनलोड करके डालोगे ना, तो व्हाट यू गोइंग टू डू, ignore this step. This was done from before. We're just going to repeat whatever I deleted. Anyway, say I want to put a picture inside my application. What I'm going to do, I'll go on Google. Then, because we're going to be making a tic-tac-toe game after this, right? I will choose my favorite cartoon, which happens to be Pokemon, and I will save. अब मुझे पिक्चर सेव करनी है इसकी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपने, ये क्या कर रहा है, what is this doing? I'm sorry, it's my mouse. Save image as. So now I'll have, okay, this is also another concept. You need to understand कि ये जो हम सारे फोल्डर और फाइल बने हुए आ रहे हैं ना, ये कहीं हवा में नहीं उड़ रहे हैं, ये फोल्डर कहीं एग्जिस्ट करता है. सही है? तो
इस फोल्डर को अगर मैं देखना है किसी भी फाइल पे राइट क्लिक करें, मेरा यहाँ लिखा है ओपन कंटेनिंग फोल्डर, आपके यहाँ होगा ओपन इन विंडोज़ एक्सप्लोरर या इस तरह की कोई चीज़ लिखी होगी. This exists somewhere, this GDSC Flutter workshop, this thing that I made, which you have chosen this folder in the beginning of the first session when we made this, right? तो ये folder actually कहीं exist करता है और ये इसके अंदर ये कहलाता है root folder हमारा project का. जिस folder में सारी ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये जो ये वाला folder है ना main, none of these folders, this folder has everything inside it. This is GDSC Flutter workshop, this is GDSC Flutter, this is called the root folder. इसके अंदर हम एक एसेट्स का फोल्डर बनाएंगे और यहाँ पे हम सेव करेंगे अपनी इमेज. और मैंने कहीं गलत जगह पे सेव कर दी है. GDSC फ्लटर वर्कशॉप के जो रूट फोल्डर हमारा था उसके अंदर हमने एसेट्स का फोल्डर बनाया, उसके अंदर हमने ये इमेज डाल दी. सही है. आई जस्ट गिव इट अ क्लीनर नेम. And now we have to import the assets folder inside our Flutter app. How do we do that? We go down. यहाँ पे एक चीज़ लिखी होगी, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और एक तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि ये बैक स्पेस करके डिलीट कर दें, और यू कैन सेलेक्ट दीज टू लाइन्स एंड प्रेस कंट्रोल स्पेस. कंट्रोल स्पेस कॉमेंट्स एंड अनकॉमेंट्स दिस थिंग, राइट? कंट्रोल स्लैश, एक्चुअली सॉरी, कंट्रोल स्लैश से ये चीज़ होती है. मैंने अनकॉमेंट कर दिया एंड देन आई मेक श्योर कि मेरा जो रूट फोल्डर है उसके अंदर एसेट्स का फोल्डर था, मैंने यहाँ लिखा. फिर उसके बाद मैंने ये स्लैश डाला, रिप्रेजेंट करता है कि ये फोल्डर है. अगर मैं ये स्लैश नहीं डालता तो उसको लगता है कि ये मैंने कोई फ़ाइल इंपोर्ट किया है. एसेट्स की फ़ाइल तो नहीं है, एसेट्स का तो हमने पूरा फोल्डर इंपोर्ट किया है. तो एसेट्स के फोल्डर के अंदर जितनी भी तस्वीरें मौजूद हैं वो हमारे पास आ जाएंगी. ये करेंगे हम, फिर हम करेंगे अपना सेव. सही है. अच्छा, इसके बाद एसेट्स के फोल्डर में जो भी इमेज थी वो हमारे पास लोड होनी चाहिए इस तरह से. फ्लटर पब गेट ये करता है कि पैकेजेस हों या एसेट्स हों वो उसको रिलोड करता है. अच्छा, अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ पे हमारी ऐप चल रही है, इसको हम ख़त्म कर देते हैं अपना थोड़ा. अच्छा, सेव. This is our application. It is पिंक कलर गया नहीं इसका, क्यों गया? लगता है कोई मसला है. Could not update files on device, cannot open file, ला 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 ला. एसेट नहीं खोल पा रहा है ये. अब हम क्या करेंगे, ये इशू आ रहा है तो कभी कभार इशू ऐसे आते हैं हम स्टॉप करते हैं, स्पेशली व्हेन द इशू हैज़ टू डू विथ एसेट्स एंड इम्पोर्टिंग एसेट्स. इम्पोर्टिंग एसेट का मतलब है कि कहीं बाहर पिक्चर पड़ी थी वो हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाली है, उसको कहते हैं इम्पोर्टिंग. एसेट है आपकी पिक्चर्स, दिस इज एन इम्पोर्टिंग एसेट्स. वी डू दिस बाय गोइंग टू द pubspec.yaml फाइल एंड uncommenting this part and writing the folder path from the root of the project which is assets. जब ये आपकी ऐप रीबिल्ड होगी तो फिर ये चीज़ें आपकी इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी इसके अंदर. कभी कभार इशू इसलिए आता है क्योंकि आप बाहर से फाइल ला रहे हो तो आपको दोबारा प्रोजेक्ट रीबिल्ड करना पड़ेगा. अच्छा, अब हम आएंगे यहाँ होम में, ये मेरी ऐप लोड हो रही है इधर. सही है. इमेज का भी एक विजेट होता है, इमेज डॉट एसेट. इमेज डॉट फाइल अगर आप कर रहे हैं, ये कुछ फाइल और मेमोरी अभी के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. नेटवर्क भी थोड़ा अच्छा आसान है, नेटवर्क भी मैं सिखा देता हूँ. किसी इमेज की अगर आप कॉपी इमेज लिंक करके यहाँ पे डाल दें, सही है, ये भी काम कर गया. लेकिन heavily and highly not recommended because this is stored on someone else's website. They will change one thing and your image will stop working. This is why what we are going to do, we are going to do image.asset. Instead of giving it a URL path, because URL is also path, right? It's saying कि वो उधर image पड़ी हुई है, वो हम image.asset में ये बताते हैं कि हमारे इधर फाइल पड़ी हुई है, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर फाइल पड़ी हुई है एसेट्स के फोल्डर में pikachu.webp. नाउ सेम थिंग, पिक्चर स्टिल देयर. हम रीस्टार्ट भी करते हैं ऐप, चलो देखते हैं.
say hot restart complete and the picture is still there. This is what you're supposed to do. After this we have to discuss. Also this page is very interesting to read for you guys conceptually. If you get through it, some of the things that I've explained are going to be great. Also widget of the week will also be really good. आप लोग को कोई widget समझ में नहीं आ रहा होगा ना, अक्सर उसकी widget of the week की widget of the week videos are very short and very good explanations that फ़ौरन चीज़ समझ में आती है. Moving on, scaffold bottom nav bar hamburger menu app bar. अच्छा, स्कैफोल्ड में कुछ और ऑप्शंस भी होते हैं. अगर हम ये डॉलर पास कर दें, आप लोगों ने देखा होगा एंड्रॉइड में कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं. ड्रॉअर का ऑप्शन भी होता है. यू गैस कैन एक्सप्लोर दिस योरसेल्फ. कंट्रोल स्पेस बार दबा के चाइल्ड में अगर आपने कॉलम में पास करके जितने भी आपको विजिट पास करने आप कर सकते हैं. अच्छा, दिस इज़ मोर इंटरेस्टिंग फॉर मी टू टीच यू गाइस बिकॉज इसमें भी मसले बहुत आते हैं. विजिट्स आपको जितने एक्सप्लोर करने हैं आप लोग गूगल पे एक्सप्लोर कर लो, बहुत डिटेल मिल जाएगी, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा एज लॉन्ग एज कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग है. जो कॉन्सेप्ट में मसला आता है वो यहाँ आता है, वो यहाँ आता है, वो फ्लेक्स वाली चीज़ में और कॉन्स्टेंट्स में आता है, और वो यहाँ आता है. सही है. अच्छा, एक और एक्चुअली इससे पहले मैं चीज़ समझा दूँ. कॉन्स्टेंट कभी कभार एरर थ्रो करवाएगा. अगर मैंने मैंने यही बात समझाई थी ना कि हम कांस्टेंट और फाइनल वाली चीज़ परफॉर्मेंस के लिए करते हैं. तो अगर हम किसी कांस्टेंट विजिट के अंदर हम क्या कहते हैं, अगर हमारे पास कांस्टेंट विजिट है और उसके अंदर हमने फाइनल या मतलब कोई कांस्टेंट विजिट के अंदर अगर हमने कोई वेरिएबल डाल दिया ना तो वो चीज़ एरर थ्रो करेगी. यानी कि इसके बीच में मैंने डॉलर काउंटर डाल दिया. अच्छा, डॉलर सिर्फ ये करता है कि स्ट्रिंग के अंदर आपने बाहर से वेरिएबल कॉल कर दिया. ये डार्ट लैंग्वेज का वो है. दिस डॉलर इज़ बेसिकली सेइंग के just convert this variable into a string and put this in the string. This is nothing else. String, अच्छा ये अगर इसका it's the same as saying this thing. सही है, it's the same as saying this thing. So the problem here is कि आपने constant के widget के अंदर एक non constant चीज़ पास की है तो वो एरर देगी. अक्सर आप लोग को समझ में नहीं आएगा मुझे एरर कैसे फिक्स करना है. मैं नीचे जाऊँगा, लिखा आएगा evaluation of this constant expression कि text widget constant था throws an exception. क्यों? क्योंकि ये बता नहीं रहा कि काउंटर का मसला था. लेकिन ये आपको चीज़ें खुद समझ में आनी पड़ेगी कि मसला यहाँ पे था आपके. ये देखते हैं ये क्विक फिक्स देता है या नहीं देता. रिप्लेस विद इंटरपोलेशन ऐड, ये सारे जो इसके ना ये काम नहीं करेगा. बस इतनी सी बात है कि अगर आपको इसके अंदर एक सेकेंड, यू हैव टू नॉट टू स्ट्रिंग भी कर दो ना, ये करना पड़ेगा आपको. कांस्टेंट हटा के इसके अंदर वेरिएबल लगा सकते हैं. अगर आप यहाँ कांस्टेंट डाल देंगे तो ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ये काउंटर का वेरिएबल है. तो अक्सर कभी मसला आ रहा होगा कि कांस्टेंट हटा दें, मसला नहीं है. सही है. सो देयर वी गो. Next concept was shapes, button colors, splash, material rendering and crop object. कॉलम का विजिट है, इसके अंदर हम बटन ऐसे बनाते हैं. फ्लटर में 3 किस्म के बटन होते हैं. एंड दिस इज़ आवर लास्ट कॉन्सेप्ट. यू हैव, अच्छा ये ओल्ड इसलिए बता रहा है कि ऑब्वियसली यू डोंट नीड टू केयर दैट मच अबाउट द ओल्ड. टेक्स्ट बटन होता है, शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. एलिवेटेड बटन, आउटलाइन बटन. आउटलाइन बटन क्या करता है अभी देख लेते हैं. आउटलाइन बटन में यू नीड टू गिव इट सम फंक्शन के ओके दिस फंक्शन विल रन and you will give it some child, usually make it a text child which says yes, and we will see it appear here, yes. Okay, and same thing if we have an elevated button, yes. And the same thing if we same thing we have a text button, then yes.
ओके, आप लोग देख सकते हैं कि ये इसने खुद ही ना पैडिंग दी हुई है, कोई मिनिमम साइज़ दिया हुआ है, कुछ कलर यहाँ रेड है, वाइट है, हमने तो नहीं दिया, ये आपकी थीमिंग से फ्लो हो रहा है। और कुछ चीज़ें जैसे कि ये साइज़ और स्पेस और पैडिंग है ना, ये आपके मटेरियल डिज़ाइन के गाइडलाइन के हिसाब से है कि इससे छोटा बटन आप रख नहीं सकते, वरना वो फिंगर के टैप करने के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये कुछ इनबिल्ट डिफ़ॉल्ट इसने मिनिमम साइज़ दिया हुआ है, ये भी एक चीज़ होती है। अच्छा, फिर आपको फ़र्ज़ करें कि बटन की कुछ चीज़ें चेंज करनी हैं, तो फिर ये मुझे आज तक कभी कभार कन्फ्यूजन होती है, मैं करता हूँ अक्सर मैं गूगल कर लेता हूँ, वैसे कि होता है इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको लग ही रहा होगा कि मैं यहाँ कलर लिखूँ, कलर्स डॉट ब्राउन कर दूँ, तो ये मसला क्यों आ रहा है मेरा, ये मसला आएगा क्यों? कुछ क्वर्क्स हैं फ्लटर के जिसकी वजह से हमें ऐसा करना पड़ता है। देखो कलर, पहले तो मुझे ये था कि मैं कलर डाल दूंगा वो हो जाएगा, वो भी नहीं था, स्टाइल बटन स्टाइल करके आना पड़ा, वो यू कैन गूगल योर सेल्फ। फिर ये इशू आ रहा है कि 5 डिफरेंट किस्म के कलर है, ये क्या है? ये आपको, जैसे मैंने बात की थी, आप लोग इंजीनियर हो, आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, कंप्यूटर साइंटिस्ट जो भी हो, ब्रेक इट, एक्सपेरिमेंट विद इट, सी व्हाट्स गोइंग राइट, व्हाट्स गोइंग रॉन्ग। शैडो कलर में अगर मैं कलर्स डॉट ब्राउन पास कर दूँ तो काम करेगा या नहीं करेगा? ये भी काम नहीं कर रहा। क्यों काम नहीं कर रहा? अच्छा, अभी देखते हैं इसको हवर करके। The argument type material color cannot be assigned to the parameter type material state property color। अच्छा, इसको समझाने के लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि का बटन के मल्टीपल स्टेट्स होते हैं। अब मैंने ऐसे ये बात की थी ना कि विजिट का स्टेट में काउंटर होता है, इसी तरह बटन के स्टेट्स में होते हैं कि बटन को मैंने बटन ऐसे खाली पड़ा हुआ है या बटन को मैंने क्लिक किया है, तो एक जो स्प्लैश करके नहीं सर्कल बड़ा हो रहा है, ये स्प्लैश का कलर है। उसके अलावा एक ये जो है हवर का भी होता है, जो क्योंकि हवर का इसमें होगा नहीं, वो फ्लटर फॉर वेब और फ्लटर फॉर डेस्कटॉप में होता है वो, लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है। फिर ये एक होता है कि जिसके डिफरेंट डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं, वो भी आप नेट पे देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो है शॉर्टकट ये है, मटेरियल स्टेट प्रॉपर्टी ऑल की इन्होंने चीज़ दी हुई है, सही है, उसके अंदर आप वैल्यू पास कर देते हैं, कलर्स डॉट ब्राउन, सही है। अब ये मैंने कलर्स डॉट ब्राउन पास कर दिया इधर, तो ये अच्छा मुझे तो नहीं दिख रहा है कि ये चीज़ कहाँ ब्राउन आ रही है, दिस नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस टू मी। अच्छा, इसको थोड़ा और स्टैक करने के लिए कलर्स डॉट ब्लैक कर देते हैं, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या, कहाँ है ब्लैक, में समझ में नहीं आ रहा। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मे बी देयर इज़ अ प्रॉब्लम दैट शैडो कलर नहीं है। अब ये आप लोग भी शायद समझ गए होंगे कि कलर लिखने में इट्स मोस्ट लाइकली द बैकग्राउंड कलर दैट नीड्स टू बी चेंज्ड, टू बी चेंज्ड इट, ओके। इसी तरह से फोरग्राउंड कलर की चीज़ होती है। फोरग्राउंड कलर क्या है? फोरग्राउंड कलर आपका टेक्स्ट है, या इसके अंदर अगर मैं कोई क्या कहते हैं टेक्स्ट के बजाय मैं आइकन पास कर रहा होता, आइकन्स डॉट यस आई डोंट नो आइकन्स डॉट इन्फो, या ओके, तो टेक्स्ट हो या आइकन हो, इसके फोरग्राउंड का कलर भी यहाँ से चेंज हो रहा है। मल्टीपल थिंग्स यू एक्सप्लोर, यू एक्सपेरिमेंट, दैट इज़ हाउ यू फाइंड आउट, देयर इज़ नो अदर वे अराउंड इट, आई एम टेलिंग यू ऑलरेडी, okay, there is no other way around it। text yes comma। अच्छा, फिर अगर मुझे इसको बॉर्डर देना है ना, तो ये भी चीज़ें होती हैं, ये आज तक मुझे भी कभी कभार मसला हो जाता है किसी चीज़ में बॉर्डर रेडियस कैसे लगाना है, क्योंकि दिस इज़ टू मच बॉक्सी। इफ़ आई वांट टू गिव इट अ लिटिल बिट मोर राउंडेड एजेस, देन मैं तो लिख रहा हूँ यहाँ पे कोड, आप लोग जाके गूगल करोगे हाउ टू गिव फ्लटर बटन चेंज रेडियस, then you go to the first option, Stack Overflow। Stack Overflow is the biggest skill of a developer। They will give you the entire thing at the beginning, sure, copy the code in the beginning, right? This is how you learn, over time you will learn, then what you will notice, देखो बदल गया ना, ये बोल रहा था, ये भी आप देखो, इफ़ यू आर गोइंग टू पिक्सल पीप एंड यूज अ मैग्नीफाइंग ग्लास और वट एवर, इसका रेडियस का भी ये सीन किया हुआ है
colors dot, what contrasts a lot with red is blue actually, yes. So these are all settings that you can play around with and check. So in the shape we are passing around material state property again, because अच्छा ये टाइप कास्टिंग भी मैं, चलो टाइप कास्टिंग भी मैं समझा देता हूँ. टाइप कास्टिंग, अच्छा शेप में कोई शेप पास किया था राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर का. अगेन इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, फ्लटर बटन शेप and then you get everything in the search results, shape property, blah 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 blah. This is for you to explore and me to introduce to you. Okay, button color, splash material, ending छोड़ दो, crop r rect b छोड़ दो. So this is enough for now, I think. And type casting should be explained to you guys when you are doing API consumption. That's all. It's all right. Clarify में क्या बोला था, ये भी कर दिया, error cause by using custom भी कर दिया. So your homework is that you have to make a screen with a brown button. You have this button. You will have a brown button, right? And imported image inside and 25 radius. So radius में 25 कर दिया. Or import your image inside it. So we will move this to the child of the button. सही है. You have to make a button that does this. अच्छा, on pressed पे भी क्या सीन होता है? On pressed पे you should understand that the print function does this thing. I explained that, largely ignored this at this level. This is for secondary things. Debug console आपका main है. तो जो आप प्रिंट का फंक्शन यहाँ पे डाल रहे हो ना, उस पर पिकाचू जितनी दफ़ा आप दबाओगे तो ये सीन होगा. तो ये यहाँ पे प्रिंट कर रहा है पिकाचू, सही है. अगर मैं पिकाचू की जगह पोकेमॉन गॉट अ कैचमॉन डाल दूँ तो फिर वो क्या करेगा, वो यहाँ प्रिंट कर रहा है ना, सही है. ये कर रहा है, ये क्या कहते हैं. अच्छा, एंड इन फैक्ट आई वॉन्ट यू गाइज ऑल्सो टू नोटिस this thing. If I set the background color to a variable, right? So if I set this to a color, bg color equals to colors dot brown, this is a variable because I haven't set final or const here. And if I set this here to a variable of bg color, right, still works. But the interesting thing is, अगर मैं bg color को set state के अंदर सेट कर दूँ इक्वल्स कलर्स डॉट ब्लैक, तो पहले तो ये होगा मैं बटन दबाऊँगा तो फिर ये स्टेट चेंज करने के लिए तैयार होगा, और चेंज ये चीज़ होगी कि बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा. देखते हैं क्या होता है. हो गया, अब ये ब्लैक ही रहेगा क्योंकि हर बार ये चेंज करा ब्लैक को. अगर मैं इसको कंडीशनल स्टेटमेंट में कर दूँ कि इफ़ bg color equals colors dot black, else bg color equals colors dot brown, right? We will see. अच्छा, ये फिर भी नहीं कर रहा सही. if background color is black तो it should become brown. actually ये मेरी गलती थी, वरना it should become black. सही है. This sort of conditional logic moving into the next session where we have to make our tic-tac-toe game will become extremely important, because you will click on a button and that will set whether you are a cross or a not. ओके, tic-tac-toe में जहाँ मैं तो ये करूँगा कि मैं क्रॉस और नॉट के बजाय पिकाचू और बल्बासौर डाल दूँगा फॉर एग्जांपल. That's it. Class over. Thank you. Bye bye.